but do not disturb anyone's peace. किसी की भी peace नहीं खराब करेंगे. All right. So have a peaceful and intellectual and educational and informational session with Bala sir. So get ready, guys. Balakrishna sir is already there in the class. Quickly type welcome for your guru, for our mentor. And yes, we have experts in different domains. हमारे पास we have experts in different domains. So of course, every expert has different strategy and different approach towards the market. तो वो सारी चीज कवर करने के लिए you should be having the patience to sit with the expert. And I will also unmute you at the end of the session. जिनको सर से बात करनी होगी मैं बात भी करवाऊंगा. And we will ask for the feedback also. जो सेशन रहेगा एक वादा है मेरी तरफ से. Guys, a small introduction for myself. My name is Azam, right? And I will be there throughout the session to help you out. अगर कोई भी किसी तरह का डिफिकल्टी आती है, कुछ भी चैलेंज आता है, I will be there. ठीक है? So चलिए गुरुजी को बुलाएं. So let us welcome our expert. ठीक है? So yes, Balakrishna sir, welcome to the class. A lot of people are excited to see you. Welcome sir, welcome to the class. Okay, good evening. Good evening all. Good evening Azam. Happy Independence Day to all. Happy Independence Day to you also, sir. Yes. So in this occasion of this day, we are going to give independence to all of you by teaching fantastic strategy today. Okay, तो किसका इंडिपेंडेंस चाहिए? काम करने का इंडिपेंडेंस. खुद आप कहाँ पे भी बैठ के खुद का काम कर सकते हैं. नो नीड टू गो टू जॉब, रेगुलर जॉब 24/7. Okay, done. Let me share my screen. Guys, today's topic is very powerful. It is very powerful topic. Already we have some of our students here. Okay. Today's topic is very, very powerful because you might be trading with a different analysis methods. You might be having experience in the market. Some of you have you are beginners in the market. आज का टॉपिक आपको बहुत यूजफुल होगा क्योंकि this is going to be a new way of trading to all of you. ये आपका ट्रेडिंग करने का एक नया तरीका आपको दिखाएगा. From now onwards, you will be seeing the market in a different way. अलग तरीके से मार्केट को देखेगा क्योंकि till now समझो आप एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है and somebody says उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, आप क्या करेगा? You cannot see. वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, आपको पता नहीं. You cannot experience it. You just imagine. बट आज से वायर के अंदर क्या कैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा उसको देख सकते हैं. So that is how markets are going to be very transparent for you. मार्केट बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आपको ट्रेड करने का तरीका चेंज हो जाएगा, मार्केट देखने का तरीका चेंज हो जाएगा. I make your trading very, very easy. Till now you might be experiencing complications in the trading. मैं आपका ट्रेडिंग बहुत इजी कर दूंगा. This is my open challenge. इसका भी इजीएस्ट मेथड आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा. इतना इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा. आज का टॉपिक का नाम है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस. ऑर्डर फ्लो एनालिसिस. ओके, दिस इज द टेक अवे ऑफ टुडेज क्लास. आज का क्लास में आप ये सीख के जाएगा. You are going to learn a very simple and very powerful order flow strategy that works in all the segments like NSE, M6 and all. Any segment it will work. कहाँ पे प्राइस मूवमेंट होगा सभी जगह में ये काम करेगा. And people who are professionals like doctors, engineers, business people who go to that job, they cannot trade. They cannot sit in the market full day and trade. पूरा दिन मार्केट में बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते. आप लोगों को and for everyone, if you don't have time to sit in the market, I am going to teach you a fantastic strategy. You just by spending 15 to 20 minutes in a day, you can still take 1 or 2 trades and you can become profitable. सिर्फ 15-20 मिनट स्पेंड करके, मैक्सिमम 30 minutes enough for you to spend in the market.
आपका काफी ब्रेक में, लंच ब्रेक में भी आप टाइम लेके आप ट्रेड कर सकते हैं. That is what I am going to teach you today. You will understand the role of the order flow in the price movement, स्मार्ट मनी और रिटेलर्स का मूवमेंट कैसा होता है मार्केट में. सपोज इफ यू लास्ट ऑल योर कैपिटल इन दिस कंफ्यूजन मार्केट, 6 महीने से क्या हो रहा है, सिंस फेब्रुवरी, एक दिन मार्केट गैप अप, एक दिन मार्केट गैप डाउन. पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन. मेनी पीपल आर होल्डिंग कॉल्स एंड पुट्स एंड लूजिंग ऑल द कैपिटल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन अंडरस्टैंडिंग. आज आपको क्लियरली मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा. मार्केट का डायरेक्शन क्लियरली 99.9% मार्केट का डायरेक्शन क्लियरली पता चलेगा. यू डोंट नीड टू यूज एनी इंडिकेटर. सपोज आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं है, यू कैन रीस्टार्ट योर ट्रेडिंग बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 10,000 एज ए कैपिटल. 10,000 कैपिटल आप इन्वेस्ट करके यू कैन रीस्टार्ट योर ट्रेडिंग बाय यूजिंग दिस मेथड. You will get the confidence to recover even your past losses. आप जितना भी बड़ा लॉस किए हैं, 10,000, 10 लाख, 50 लाख, even 1 crore, you have a chances to recover that past losses by using these methods. इस मेथड्स को यूज करके आप पास्ट लॉसेस को रिकवर करने का तरीका भी आपको समझ में आएगा. You will learn one powerful setup with the proper entry, proper stop loss, proper target. We never trade without stop loss, without target. Before taking trade, we always know where is our entry, where is our stop loss, where is our target. Okay, and this will be a very powerful strategy which I am going to teach you, and you must give me 90 minutes of time. मुझे 90 minutes का टाइम देना है, because ये एक नया टॉपिक है. I cannot teach you in one go. 5 मिनट में, 10 मिनट में नहीं सिखा सकता हूँ. स्टेप बाय स्टेप में आपको बेसिक से सिखाना है. So you have to give me 90 minutes of time. Every topic which I am going to teach you here will be very, very interesting and very new. So आप ध्यान से सुनना है. If you don't have a time, you are in urgency, I don't have any problem, you can leave. Only people who are very serious, you can sit with. benefit उठाओ. Okay, let me move forward. What is order flow? Order flow क्या है? Order flow, it is not overflow. Many people after saying order flow overflow जानते हैं. Order flow, order. Okay, order flow का नाम किसे है? Order flow is a tool or a software. एक tool और ये एक सॉफ्टवेयर है. इसको इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी यूज करते हैं. वो क्यों यूज करते हैं? Why only institutions will use this? Institutions का मतलब क्या है? People who trade with a huge capitals like thousands of crores, hundreds of crores, like hedge funds, mutual funds, banks, all this. वो इतना बड़ा कैपिटल में ट्रेड करना है, तो they will use two methods to trade. One is a fundamental analysis of a company. They are not going to trade. First of all, वो trade नहीं करेगा, वो invest करेगा. If they want to invest, they do fundamental analysis of a company and they choose the company. कंपनी को तो चूज किया, कंपनी चूज किया करके एकदम इन्वेस्ट नहीं कर सकते. They have to time the entries. क्या टीसीएस अच्छा है? इन्वेस्ट कर दो. एचडीएफसी बैंक अच्छा है, ब्लू चिप कंपनी है, इन्वेस्ट कर दो. कर दिया आपने 3 साल के, अज्यूम दैट 3 साल के पहले कर दिया, ये मान के अच्छा कंपनी है, मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया, टीसीएस इज फैंटास्टिक, एचडीएफसी बैंक इज फैंटास्टिक. आज देखो those companies are running with below 30-40% loss. So it is not just understanding whether it's a good company or bad company. You need to understand in which price you need to buy. That is called timing. Timing the price, timing the entry. Entry को पकड़ना, entry price को decide करा, which is a fair price to entry. उसको समझने के लिए, उसको पकड़ने के लिए they use this order flow tool and many such tools. Many such tools. They maintain many such softwares. The
the role of this software is to grab the market information. मार्केट इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके उसको बताना. Order flow is one of the powerful tool they use to grab the market information. इससे क्या होगा? They will generate high confidence trades and they will generate high quality trades. They will not be taking trades like you and me. हम लोग क्या करते हैं ना, हम ट्रेड करते हैं इमोशंस के ऊपर. मेरा दोस्त बोला, टीवी में कोई बोल दिया, फ्री में कोई बोल दिया, कोई टिप दे दिया, कोई कॉल करके बोल दिया, एकदम मुझे मैसेज आया. दिस इज हाउ वी ट्रेड. They trade in a different way. They are very serious. Okay. Now they generate high quality trades, high confidence trade. For example, आपको एक हाई क्वालिटी ट्रेड मिल जाएगा. इसका मतलब क्या है? हाई क्वालिटी ट्रेड का मतलब क्या होता है? हायर चांसेस इट विल मेक यू प्रॉफिटेबल. हायर चांसेस, मार्केट में क्या होता है ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड श्योर. मार्केट में कोई श्योर नहीं बोल सकते. नोबडी कैन टेल यू यस ये ऐसा ही होगा. सिर्फ भगवान ही बोलेगा. ऐसा कोई आपको बोलेगा श्योर, वो सच्ची नहीं है. तो हाई क्वालिटी ट्रेड का मतलब क्या होता है? देयर आर हाई चांसेस ऑफ गिविंग यू प्रॉफिट्स. हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड का मतलब क्या होता है? हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड में आप ज्यादा पैसे लगा सकते हैं. यू कैन इन्वेस्ट मोर मनी. Okay, I hope you understand this. Now, look at this. What are the benefits of the order flow? Manish Jalali. Azam, are you there, Azam? Yes, sir. Manish Jalali को कुछ प्रॉब्लम है, देखो, please help him. The benefits of the order flow is it is a logical method of analysis. You will identify the tops and bottoms of the swings. हर एक swing का top और bottom को पकड़ सकते हैं, catch कर सकते हैं. There's no random trades here, no emotional decisions. Most of retailers trades are based on the emotions. इधर कोई emotions पे trade नहीं करते हैं. These are logical. Trades are generated with a very low risk and high reward. ट्रेड में क्या होता है? कब आप ट्रेड लगाते हैं, when you take a trade, there will be always risk in the trade. कब हमारा जीवन में हमको भी रिस्क है. हमको पता नहीं, कोई 20 साल जिएगा, 30 साल जिएगा, 50 साल जिएगा. We have a risk. कितना साल हम जीते हैं वही हमारा रिस्क है. लंबा जिएगा, that is your bonus. So here आप ट्रेड लेगा तो if something goes wrong, कितना आप लॉस करेगा? If everything goes right, कितना आपका प्रॉफिट होगा? जैसा पॉलिटिशियंस क्या करेगा, 30 साल में, 40 साल में उसका पॉलिटिकल करियर में 100 साल का, 200 साल का कितना पैसा बनाना है वो पूरा बनाएगा. दैट इज द रिवार्ड. लाइक दिस रिस्क रिवार्ड क्या होता है? व्हेन यू लूज, कितना आप लॉस करोगे, व्हेन यू गेन, कितना आपका प्रॉफिट होगा. ऑलवेज रिवार्ड शुड बी हायर देन द रिस्क. रिस्क का भी ज्यादा रहना है. ओके, हियर ट्रेड विल बी जनरेटेड विद अ वेरी मिनिमल रिस्क एंड रिवार्ड्स आर वेरी हाई. You act on the source of the price movement, so it's a leading tool that predicts the market price movement. The indicators you trade, most of you trade based on indicators, RSI, stochastic, MACD, moving average, whatever, those are the indicators. वो प्राइस मूवमेंट करने के बाद आपको बताएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. बट ऑर्डर फ्लो आपको प्राइस मूवमेंट होने का पहले ही बताएगा. ये बताने के बाद ही प्राइस में मूवमेंट होगा. दैट इज कॉल्ड दिस मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, नाउ आई विल टेक 1 minute to you, 1 minute of you to explain how market behaves and how it moves. मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स होता है, स्मार्ट मनी एंड रिटेलर्स. Smart money are the institutions, are big players in the market who invest thousands of crores in the market, like funds, mutual funds, banks, hedge funds,
ऑल दिस रिटेलर्स आर वी, हम लोग, ओके हमारा इन्वेस्टमेंट साइज क्या होता है? आवर इन्वेस्टमेंट साइज इज वेरी स्मॉल, लाइक थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड मे बी सम करोड्स. स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट साइज विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, हजारों करोड़ों में. जस्ट गूगल एंड चेक. एक एसबीआई म्यूचुअल फंड का साइज कितना होता है? 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़. लेट अस टेक ए वेरी मिनिमल एंड वेरी स्मॉल म्यूचुअल फंड, वो 10,000 का होगा, 10,000 करोड़ का. इवन दे आर इन्वेस्टिंग इन 20-30 स्टॉक्स, वो इन्वेस्ट करेगा 500 करोड़, 1,000 करोड़ इन ए वन स्टॉक. बट द ट्रांसैक्शन ऑलवेज हैपेंस बिटवीन these two people. Smart money or institutions will be buying from the retailers. रिटेलर से बाई करेगा, पैसा उसको दे देगा. कभी कभी स्मार्ट मनी विल बी सेलिंग द स्टॉक्स टू रिटेलर्स एंड दे विल बी टेकिंग मनी बैक. दिस इज हाउ द ट्रांसैक्शंस विल ऑलवेज हैपन. बट ये दोनों लोगों का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है. ट्रांसैक्शंस विल हैपन बिटवीन दिस टू पीपल, बट दिस टू पीपल्स ट्रांसैक्शन टाइप्स आर डिफरेंट. क्योंकि स्मार्ट मनी आर द इन्वेस्टर्स एंड रिटेलर्स आर द ट्रेडर्स मोस्ट ऑफ द टाइम. ये रिटेलर क्या करेगा? ये एसटीबीडी ट्रेड करेगा, बीटीएसटी करेगा, स्विंग ट्रेडिंग करेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेगा. बट स्मार्ट मनी ऑलवेज दे इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट करेगा बिकॉज देयर इन्वेस्टमेंट इज साइज इज वेरी बिग. नाउ इफ दे वांट टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़ इन एनी स्टॉक, ये कोई स्टॉक में, एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, देयर क्वांटिटी इज वेरी ह्यूज. बड़ा क्वांटिटी होगा ना, 10,000 1,000 करोड़ में आप खरीदना है कोई स्टॉक को, द क्वांटिटी विल बी वेरी बिग. somebody should be available in the market to sell that much of quantity. उतना क्वांटिटी आपको सेल करने के लिए कोई रेडी रहना है. but such a big quantity, nobody will be ready to supply such a big quantity. example, there are retail shops nearby your home. आपका घर के आजू बाजू कुछ रिटेल शॉप्स हैं. रिटेल शॉप में आप जाएगा तो क्या करेगा? यू बाय 1 kg, 2 kg और 5 kg, 10 kg और 25 kg ऑफ शुगर. यूजुअली आप चले गए रिटेल शॉप में एंड आप बोला मुझे 10 टन का शुगर चाहिए. यू गिव मी 10 टन ऑफ शुगर. मिलेगा क्या? 10 टन का शुगर नहीं मिलेगा एक कोई रिटेल शॉप में. बट आपको चाहिए. रिटेलर सारे रिटेल शॉप, इंस्टीट्यूशन सारे बिग मनी, उसको बड़ा क्वांटिटी चाहिए, इधर नहीं मिलेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू डिफरेंट रिटेल शॉप्स. अलग अलग रिटेल शॉप में जाके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं. आपके पास कितना कितना केजी है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो. सो यू स्टार्ट टू एक्यूमुलेट एंड मेक इट 10 टन्स. कब तक आपका 10 टन्स पूरा होगा? यू विल बी सर्चिंग अनदर शॉप, अनदर शॉप, अनदर शॉप एंड यू आर एक्यूमुलेटिंग. सेम वे इंस्टीट्यूशंस क्या करेगा? Institutions will break a big quantity into small block sizes. बड़ा क्वांटिटी को समझो, उसको 1 करोड़ क्वांटिटी चाहिए. They break a big quantity into small block sizes like 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसा छोटा छोटा ब्लॉक साइज में ब्रेक करके they are starting to execute this in the market. इस ब्लॉक को मार्केट में रिपीटेडली एक के बाद एक वन आफ्टर अदर मार्केट में एग्जीक्यूट करते रहेगा. 5 लाख का एक ब्लॉक, इसके बाद 8 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का. दे विल बी रिपीटेडली सेंडिंग दिस ब्लॉक टू मार्केट टू एग्जीक्यूट. एंड व्हाट विल हैपन? दे आर रिपीटेडली पंचिंग ए बिग क्वांटिटी इनटू द मार्केट. सो दिस विल स्टार्ट टू क्रिएट ए डिमांड, कंटिन्यूअस डिमांड. क्योंकि वो लगातार बाई कर रहा है, लगातार रिपीटेडली दे आर बाइंग with a different block sizes continuously in the market, and this will create a continuation demand in the market. Because of this continuation demand, price will start to spike up. Price क्या करेगा? ऊपर जाएगा एक डायरेक्शन में. Unidirectionally market will start to move up because of this demand. Repeated market buying from the institutions will create a price spike or up move, and this is called uptrend. हम इसको बोलते हैं uptrend. We call it as uptrend. मार्केट में अपट्रेंड कब बनेगा? मार्केट में अपट्रेंड बनेगा बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिपीटेड बाइंग. रिमेंबर दिस. इफ देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल रिपीटेड बाइंग,
मार्केट विल नॉट एट ऑल मूव, वो ऊपर ही नहीं जाएगा। क्यों? दे बाय रिपीटेडली, इफ दे वांटेड टू बाय रिपीटेडली दे शुड हैव एनफ मनी, जितना मनी होना चाहिए वो रिपीटेडली बाय करने के लिए, इट शुड बी वेरी ह्यूज, राइट? हम अज्यूम दैट हम जाएगा मार्केट में, यू सिट इन द मार्केट, यू स्टार्ट टू बाय टाटा मोटर्स और रिलायंस, आपका पैसे एक ट्रेड में खत्म हो जाएगा। हमारे पास कितना रह सकता है? मे बी 10,000, मे बी 10 लाख, मे बी 10 करोड़। 10 करोड़ आप ऑर्डर डालोगे तो मिल जाएगा आपको, बिकॉज आवर क्वांटिटी, आवर मनी विल बी वेरी स्मॉल। वी कॉल रिटेलर्स मनी एज ए लिमिटेड मनी एंड वी कॉल स्मार्ट मनी एज ए अनलिमिटेड मनी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम, सपोज वो कोई स्टॉक प्रॉफिटेबल में है, इफ दे वांट टू एग्जिट और सेल, अगेन दे कैनॉट सेल इन वन गो, एक ही बार उतना क्वांटिटी को सेल नहीं लगा सकते। दे ब्रेक इनटू स्मॉल ब्लॉक साइजेस, अगेन 5 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 6 लाख ऐसा, एंड दे विल बी कीप सेलिंग रिपीटेडली, सेल 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 करते रहेगा until they are going to finish. So that repeated market selling from the institutions will create a selling pressure in the market, and that will bring down the market in one direction. This is called downtrend. हम इसको बोलते हैं downtrend. Please understand, without institutional participation market में कोई movement नहीं बनेगा. If institutions are participating in the market, if they are buying, market will move up. If they are selling, market will go down. Okay, I hope you understand the direction, how to find out the direction. आपको समझ गए ना? If institution buy करेगा, market ऊपर जाएगा. You understand the direction? If institutions will sell, market will come down. You understand the direction? अब आपका काम क्या है? एक चीज आप समझना है, इंस्टीट्यूशन कब बाय करेगा, इंस्टीट्यूशन कब सेल करेगा. इफ यू अंडरस्टैंड दैट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन मार्केट इज गोइंग टू मूव एंड फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू मूव. इफ रिटेलर आर ट्रेडिंग इन द मार्केट, रिटेलर मार्केट में ट्रेड करेगा तो ऐसा ट्रेड करेगा. कैसा ट्रेड करेगा? वी डोंट हैव ए कनेक्शन ईच अदर. रिटेलर को हमको कोई कनेक्शन नहीं है. A group of people somewhere accidentally buying, group of people will be selling, group of people will be buying, group of people will be selling. So that is how retailers will create a non-trending movement in the market. Non-trending market को create करेगा, flat market को create करेगा, क्योंकि हमारे पास we don't have enough money to repeatedly buy or repeatedly sell. Repeatedly buy करने के लिए या repeatedly sell करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा पैसे नहीं है. हम बाई करेगा तो पैसे खत्म, हम सेल करेगा तो हमारा पैसे खत्म. सो वी क्रिएटेड नॉन ट्रेंडिंग मूवमेंट. रिमेंबर, कब मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रहेगा, फ्लैट रहेगा, पीपल हु आर प्रेजेंट इन द मार्केट आर रिटेलर्स. कब मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर चलते रहेगा या गिरते रहेगा, पीपल हु आर प्रेजेंट इन द मार्केट आर इंस्टीट्यूशंस. अब समझो आपकी गलती को. मेनी पीपल who take trades and they fail. ट्रेड लेने के बाद आपका ट्रेड नहीं चलता है या उधर ही घूमते रहेगा, प्रॉफिट में नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टेकन ट्रेड इन द लोकेशन ऑफ वेयर रिटेलर्स आर ट्रेडिंग. कब मार्केट में रिटेलर है उसके साथ आप ट्रेड ले लिया, इसीलिए आपका ट्रेड नहीं चला. ये समझ के, आप ऑर्डर फ्लो समझ के आप इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड लेते हैं, आपका जर्नी हैप्पी जर्नी होगा, क्योंकि market will start to move in only one direction that time. Okay, I hope now you understand when to trade, when not to trade. Retailer कब मार्केट में रहेगा, ट्रेड नहीं करना है. स्मार्ट मनी कब मार्केट में रहेगा, उसके साथ ट्रेड करना है. Now only our job is to understand when smart money is there in the market, when smart money not there in the market. How do you find out it? कोई इंडिकेटर आपको नहीं बता सकते. Only order flow can टेल यू. सिर्फ ऑर्डर फ्लो ही आपको बताएगा. ऑर्डर फ्लो कैसे बताएगा? देखिए, ऑर्डर फ्लो ट्रेडर का काम बहुत आसान है. इट्स वेरी 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 इजी, क्योंकि हम इधर ज्यादा एनालिसिस नहीं करते. वी डोंट डू मच एनालिसिस हियर. द लॉजिक बिहाइंड ऑर्डर फ्लो ट्रेडर इज
to find out where smart money is starting to buy, or smart money is starting to sell. वो कहाँ स्टार्ट कर रहा है बाय करने के लिए, कहाँ स्टार्ट कर रहा है सेल करने के लिए, इसको समझना. Understanding or locating the smart money buying and smart money selling. If smart money start to buy, हम भी उसके साथ बाय करने के लिए स्टार्ट कर देगा. And they will move the market further. वो आगे लेके जाएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं. They will take the market because they will be repeatedly buying, and because of that market will move, and we will be booking the profits whenever we want. If smart money is selling, वो हम समझ जाएगा तो हम उसके साथ सेल कर देंगे, and they will be keep selling and they will move the market down and we will enjoy this fall. So इतना easiest method होगा हमारा. That is the reason we have high accuracy and very less limited risk. Okay, I hope you understand the logic of a smart money, logic of a order flow trader. साइडवेज मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हैं सर, साइडवेज मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग ऑर्डर फ्लो. नाउ आई विल बी गिविंग यू 5 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग टू स्टॉप योर लॉसेस. क्या सर ये सभी लोग बताएगा आप करोड़ों कैसे कमाना है? एवरीबडी विल गिव पॉइंट्स टू बिकम प्रॉफिटेबल, बट यू आर टेलिंग अस टू स्टॉप मेकिंग लॉसेस. क्योंकि आप में बहुत लोग मार्केट में बहुत साल से है and you also have your own experience. ऐसे नहीं है आपको कुछ भी पता नहीं. Most of you know everything. Even after knowing everything, you are not able to become profitable. इसका मतलब there is a gap between your knowledge and application of it. आपको knowledge है but उसको अप्लाई करने में कुछ ना कुछ गैप है. Do you agree this? How many of you agree this? You know all, but you don't know how to apply and make it profitable. इसमें वो गैप को मैं आपको फिल करता हूं. आई विल शो यू द हाउ टू फिल दैट गैप एंड ऑन योर ओन यू विल बिकम प्रॉफिटेबल. आप क्या करते हैं? यू रिपीट द मिस्टेक को आप रिपीट करते हैं. उससे क्या होगा? बार बार मिस्टेक होते रहेगा, आप लॉस करते रहेगा. नाउ इफ यू स्टॉप मेकिंग लॉसेस, आपका चलते हुआ लॉसेस को स्टॉप करेगा, automatically you will become profitable. The hurdle for your profits is your losses. आप प्रॉफिटेबल होने का हर्डल ही आपका लॉस. वो लॉसेस को आप निकालेगा और लॉसेस को स्टॉप करेगा, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम प्रॉफिटेबल. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. यू हैव टू स्टॉप मेकिंग लॉसेस फर्स्ट बिकॉज यू डू रिपीटेड मिस्टेक्स. रिपीटेड मिस्टेक्स मार्केट में नहीं करना है. मैं आपको ये बताऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस मिस्टेक्स यू डू. 5 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग दैट विल हेल्प यू टू स्टॉप मेकिंग लॉसेस. आपका लॉसेस को आप काटेगा या स्टॉप करेगा, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर. दैट इज माय ओपिनियन. क्योंकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो पहला आपका लॉसेस को स्टॉप करना है. फर्स्ट वन इज you have to choose the proper market and proper instrument which is suitable for you. Don't keep jumping from market to market, instrument to instrument. लोग क्या करेगा? 50 लाख लेके ऑप्शन में आएगा, 50 लाख में 40 लाख लॉस करेगा. Now they say option is not suitable for me. और 40 लाख लॉस को रिकवर करने के लिए 10 लाख लेके फोरेक्स में जाएगा और फोरेक्स में 10 लाख में 9 लाख लॉस करेगा. Because they don't know what to do, how to trade. और उधर से अभी 1 लाख लेके स्टॉक में आएगा और 1 लाख में 50 लाख को रिकवर करना चाहते हैं. So that is how people will be jumping from here to there without having a proper knowledge. So don't do that. Properly choose the market and proper instrument to trade. It is just like you are choosing your life partner. शादी के लिए लड़की या लड़का चूज करते हैं ना, आप क्या करेगा? ऑन द स्पॉट आप चूज करेगा क्या? यू टेक सम टाइम, यू वेरीफाई, यू सी वेदर इट इज ए कंपेटेबल और नॉट. कुछ दिन वो बैक टेस्ट भी करेगा आप. सो इफ यू चूज द रॉन्ग पार्टनर, योर लाइफ इज गोइंग टू रुइन.
इफ यू चूज द रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट एंड रॉन्ग मार्केट, आपका पैसे का जीवन भी खत्म होगा. सो बोथ आर सेम. सो ध्यान में रख के अच्छा, यू हैव टू चूज द इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट परफेक्टली. सेकेंड इज यू मस्ट हैव ए ट्रेडिंग प्लान. आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना है. ट्रेडिंग प्लान का मतलब कितना पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हाउ मच रिस्क यू हैव टू टेक, हाउ मच रिवॉर्ड यू मस्ट गेट. If something goes wrong, when you have to stop. That is the trading plan. Third very important critical point is don't over trade. 99% of people, they lose all their capital because of over trading. Over trading का मतलब क्या है? Taking multiple trades without, I can say unconsciously. आप बैठेगा एक दो ट्रेड करना, बाद में लॉस हो जाएगा एक दो ट्रेड में. You want to recover that, you take third trade, उसमें प्रॉफिट आएगा, उसमें प्रॉफिट आगे करके जोश में और एक ट्रेड करेगा, उसमें लॉस होगा, वो ईगो में उसको रिकवर करने के लिए फिफ्थ ट्रेड लेगा, सिक्स्थ ट्रेड. दिस इज हाउ ईगो ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, एंड यू गो टू 10, 20, 30, 40, 50 ट्रेड्स. ऐसा कभी भी मार्केट में नहीं करना है. यू मस्ट बी सीरियस अबाउट योर इन्वेस्टमेंट. आपके इन्वेस्टमेंट में आप सीरियस रहना है. डोंट एवर ओवर ट्रेड. यू हैव टू रिड्यूस द ट्रेड्स as much as possible. कितना कम होगा उतना कम ट्रेड लेना है मार्केट में. It's a very critical point. Remember this. Fourth one is a minimum risk reward should be 1:3. इसका मतलब क्या है? 1:3 का मतलब रिस्क इज 1, ये रिस्क है, ये रिवार्ड है. रिस्क का मतलब when you are losing, you will be losing 1 rupee. Something goes wrong, you will be losing 1 rupee. If everything is right, you will be gaining 3 rupees. Why sir? I have a 1:1 risk reward. मेरे पास 1:2 है, मेरे पास 1:10 है. Why I should stick to only 1:3? देखो, there are many methods. If you go to 1:1, 1:2, you need higher strike rate, higher accuracy चाहिए. अब 1:10 में, 1:20 में, 1:30 में जाएगा. It is very difficult to achieve it always. Always आपको ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा. And you need to wait for a very long time after taking a trade. समझो आप 100 rupees में buy करेगा and you expect the price to go to 200 rupees with a stop loss of 90 rupees. This is called 1:10 risk reward. It will directly not go from 100 to 200. वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा करेगा, ऐसा करेगा. कब ऊपर जाएगा that is okay. When it come down like this, ऐसा नीचे आएगा, this is where you will be scared and you will be exiting them from the market. आप एग्जिट करने के बाद वो डायरेक्टली जाएगा 250. So bigger targets are very tough to achieve and it is very late. You will not be having so much of patience to hold the trade. इसके अंदर आपका ट्रेड फिनिश करने के अंदर एंट्री लेने के बीच में you do lot of mistakes because price will never move in a straight line. They will move in a zigzag way. So बहुत लंबा वेट करना बहुत मुश्किल है. Coming to 1:3 risk reward, this is in reality achievable and I can say this is the sweet spot. Sweet spot का मतलब क्या होता है? It is realistically इसको achievable है और तुरंत भी ये आपको मिल जाएगा 1:3. Higher possibility you get the 1:3 risk reward quickly. And just with the 26% of accuracy, सिर्फ 26% ऑफ एक्यूरेसी में आप प्रॉफिटेबल हो जाएगा. यू डोंट नीड 75%, यू डोंट नीड 99%. सिर्फ 26% ऑफ एक्यूरेसी में आप प्रॉफिटेबल हो जाएगा. इसके ऊपर इफ यू गो 27, 28, 30, 40, 50, यू स्टार्ट टू मेक बिग मनी. बहुत बड़ा प्रॉफिट आप करेगा. सो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर मिनिमम 1:3 एंड बियॉन्ड दैट इफ यू गेट क्विकली. सेकेंड, नेक्स्ट, कितना ट्रेड लेना है? आई फोकस मोस्टली ऑन इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग. मैं ज्यादा इंट्राडे में स्कैल्पिंग में करता हूं. आई डोंट होल्ड ट्रेड फॉर ओवरनाइट. आई विल आल्सो टेल यू द रीजन. इट्स वेरी रिस्की टू होल्ड ओवरनाइट. यू विल बी हैविंग ए स्लीपलेस नाइट्स. इसलिए आई वांट टू हैव अ स्लीप वेरी गुड नाइट. सो दैट इज द रीजन आई गो फॉर इंट्राडे ट्रेड्स. You have to take less than 3 trades in a day, not to cross more than 3. 3 ट्रेड में आप खत्म करेगा आप ट्रेडिंग, बहुत अच्छा. इवन इफ यू रिड्यूस लेसर देन 3, 2, फैंटास्टिक. एक ही ट्रेड करेगा एक दिन में, माइंड ब्लोइंग.
It is not that how many trades you take, how much profitable you are, how consistent you are, that matters. ऐसा नहीं कोई 10 ट्रेड करेगा वो बहुत बड़ा ट्रेडर है. ओके, 10 ट्रेड क्यों करेगा? बिकॉज ही डोंट हैव ए कॉन्फिडेंस. दैट इज द रीजन यू टेक 10 ट्रेड्स. आपको रियली आपका स्ट्रेटजी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, 10 ट्रेड में कितना पैसे बनाना है, आप एक ही 2 ट्रेड में बना सकते हैं. पीपल हु ट्रेड लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स, दे आर मोर कॉन्फिडेंट एंड दे हैव ए टाइम फ्रीडम. अब 10 ट्रेड लेना है तो पूरा मार्केट में बैठना है, 1-2 ट्रेड लेना है तो आप 1 घंटे आधा घंटे में आप ट्रेड को खत्म कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज वंस 3 ट्रेड्स आर डन इन ए डे, कब आपका 3 ट्रेड खत्म हो जाएगा, यू हैव टू क्लोज योर टर्मिनल एंड गो आउटसाइड. आप मार्केट के सामने नहीं बैठना है. क्या होगा? स्टिल यू आर इन द मार्केट, इट विल प्रोवोक, आपको प्रोवोक करेगा. भाई अभी एक ट्रेड मिल गई, ले लो इसको, प्रॉफिटेबल है आप ऑलरेडी, कुछ ना कुछ आप रिस्क करो. दैट इज हाउ मार्केट विल प्रोवोक, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग ह्यूमन बींग्स है. आजकल बाबा को भी गर्लफ्रेंड होता है, यू नो इट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ह्यूमंस आर, वी हैव इमोशंस. हम इमोशंस के ऊपर ही चलेगा हमारा जिंदगी. इट इज नॉर्मल दैट वी आर गोइंग टू बी प्रोवोक्ड. मार्केट के सामने बैठेगा, हम प्रोवोकेशन से और एक ट्रेड ले लेगा. इसलिए इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग योर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन मैनेज इट. दोज हु आर प्रॉफिटेबल इन द मार्केट, दे नो हाउ टू मैनेज इट. कैसे? कब 3 ट्रेड हो जाएगा, यू कैन क्लोज योर टर्मिनल एंड गो आउटसाइड. तब आप मार्केट को ही नहीं देखेगा, यू कैन नॉट बी प्रोवोक्ड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. कंट्रोल करना. आई होप दिस इज यूजफुल. समझ में आ गए? नाउ 5 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग को जितना लोग फॉलो करेगा, इफ यू फॉलो दिस फॉर 45 ट्रेडिंग डेज, 45 ट्रेडिंग डेज को फॉलो करोगे, व्हाट यू नीड टू डू, चूज अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड मेंटेन ए प्लान विदाउट ओवर ट्रेडिंग. सिर्फ दिन में मैक्सिमम 3 ही ट्रेड लेना है और 3 ट्रेड में क्लोज करना है. 1:3 मिनिमम रिस्क रिवार्ड में ट्रेड करना है. इफ यू फॉलो दिस फॉर 45 ट्रेडिंग डेज, you see lot of changes in your trading style. Just in 10 days you start to say your losses are going to stop. आपका loss stop हो जाएगा. From 11th day itself you start to see your profits will start to happen. Why? इधर कोई हम पूजा नहीं कर रहा है. We are just following the discipline and this discipline is achievable. मैं ऐसा कुछ नहीं बोला आपको मॉर्निंग 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, ये ऐसा नहीं बोला. आई एम टेलिंग यू टू फॉल इन टू द डिसिप्लिन एंड दिस डिसिप्लिन इज अचीवेबल. आप 3 ट्रेड ले सकते हैं, 3 ट्रेड के बाद टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं. यू कैन ट्रेड विथ 1:3 रिस्क रिवार्ड मिनिमम. आपको 1:3 रिस्क रिवार्ड में ट्रेड मिलेगा तभी लेना, नहीं मिलेगा तो नहीं लेना. दैट्स ऑल. रूल इज रूल. If you follow this, nobody can stop you to become profitable. मैं चैलेंज कर सकता हूँ, you can also challenge me. मुझे आप चैलेंज कर सकते हैं. You follow this and come back after 45 days and you tell me, sir, this is the result. I always get the positive result क्योंकि this is what I follow. Now, this is how I trade myself. खुद मैं ऐसा ट्रेड करता हूँ. Every day I take only 2 trades. सिर्फ 2 ट्रेड लेता हूँ. एंड एवरी ट्रेड आई विल फिनिश विद इन 15 to 20 मिनट्स. 15 से 20 मिनट में मैं क्लोज भी कर देता हूं. आई विल नेवर होल्ड ट्रेड फॉर वेरी लॉन्ग. ट्रेड लेके मैं लंबा नहीं बैठता हूं. आई कैन नॉट होल्ड ट्रेड फॉर 1 hour, 2 or 3 hour. ट्रेड लेने के बाद 15-20 मिनट में वो टारगेट भी हिट हो जाएगा. सो दैट इज हाउ मोस्टली मैं 30 मिनट्स में ट्रेड फिनिश करके आराम से मार्केट के बाहर चले जाऊंगा. Now you can ask me, sir, why do you finish your trade within 15 to 20 minutes? After a lot of experience in the market, I come to understand, because I am from psychology background, trade लेने के बाद after taking a trade, waiting more than 30 minutes is very difficult. Waiting more than 30 minutes. 30 minutes आप ऐसा वैसा ट्रेड लेके बैठ सकते हैं. समझो आप ट्रेड लिए 100 रुपीज में, प्राइस उधर ही घूमते रहेगा, ऐसा 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 ऐसा.
You can sit with the patients for another 30 minutes. After 30 minutes, you lose patience. If you lose patience, you start to do mistakes. क्या मिस्टेक करेगा? कब ये नीचे आएगा, आप डर के आप निकल देगा, यू विल बी एग्जिटिंग. फिर भी ये कब ऊपर जाएगा, फिर भी ग्रिड में आप री एंट्री लेगा, फिर भी नीचे आएगा, फिर भी डर के आप निकल देगा. Again it goes upside, you take the re-entry. So this is how over trading will happen. This will lead to over trading. I hope some of you are able to realize it. आपका experience है. उदय प्रताप सिंह, right? Shruti, good. So this is what happens in every trader's life. आप लंबा होल्ड करोगे, it will be very difficult to hold a trade क्योंकि you see it is going up and down, up and down, up and down. Okay, now this is what I follow, and even if you follow this, you will be in profits. Now I will show you a trade. मैं एक आपको ideal trade बताऊंगा, how the trade should be. Mostly trade का मतलब आप ऐसा जानते हैं, you need to buy at low, sell at high. That's all. आप profitable हो जाएगा, नहीं होगा. Even you have strategies that will give you entries and that will also give you profits, but most of you, even after having such strategies, you are not profitable क्योंकि वो आपको सता के it will take very lengthy time, very longer time to go to the target. When it takes very longer time to go to the target, humans will not be having so much of patience to hold a trade क्योंकि it will always moves like a waves. कब ऊपर जाएगा 5,000 का प्रॉफिट, कब नीचे आएगा 7,000 का लॉस, कब ऊपर जाएगा 5,000 का प्रॉफिट, कब नीचे आएगा 10,000 का लॉस. So you cannot see this. इसको देख के नहीं बैठ सकते. This is a very difficult phase to hold a trade. I will show you how the ideal trade should be. एक ideal trade कैसा होना है to end up with the peaceful profits. एक peaceful profit लेके बाहर आने के लिए एक ideal trade कैसा होना है मैं आपको बताऊंगा. These are some of our trades we have taken. हम एक कुछ trades लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ. This is the bank nifty. You see this, ये एक bank nifty है, bank nifty का futures left side. This is a bank nifty futures and this is a bank nifty call option. Okay, and we trade options based on the futures levels. इसीलिए you see future level में हमारा buying entry level है 53,325, stop loss is 53,280. So there are 45 points of risk we are taking in futures, and this is the target of 800 points. 800 points का हमारा target है. In option we are buying at the 752. Right side में देखो, we have a option and we are buying at a 750 rupees. 750 is the buying price and 739 is the stop loss. We have a 11 rupees of risk in option. दोनों में भी entry trigger हुआ है. Both are triggering your hand. हमारा entry trigger हुआ है. Okay, you see there, entry triggered. Now option में 30 is the lot and 11 is the stop loss size. So we are having a 330 rupees of stop loss size. मतलब something goes wrong, we are going to lose 330 rupees. Now tell me, if you lose 330 rupees in your trading, आपका ट्रेडिंग में 330 रुपीस का लॉस हो जाएगा. क्या ये आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा लॉस हो गए, आई कैन नॉट ट्रेड आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा? इज इट गोइंग टू डिस्टर्ब योर माइंडसेट 330 रुपीस? नो, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड वेरी मिनिमल रिस्क. वेरी मिनिमल रिस्क, बहुत मिनिमल रिस्क है वो, बहुत छोटा सा. इट इज ए रिस्क like if you go outside and have a meal and it will be around 500 rupees and this is lesser than that. आपका 330 rupees का लॉस हो जाएगा. It will not disturb your mindset. It will not stop you to take further trade. Okay, this is called minimal risk. कब प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट्स will be 300 rupees. 300 rupees का प्रॉफिट्स है. So this is the target. ये टारगेट है 1050. So when it hits the target, you are going to gain 300 rupees. So total profits will be 9,000 rupees.
तब आपको प्रॉफिट आएगा, रिवॉर्ड आएगा. Reward will be 9,000 rupees. When something goes wrong, you are going to lose only 330 rupees. Tell me, is this trade is good or not? क्या ये ट्रेड अच्छा है? नहीं. So first of all, risk is very minimal and reward is very great. Now ये एक पार्ट हो गए. दूसरा, how good the trade movements, ये ट्रेड का मूवमेंट कैसा होगा. कीप लुकिंग एट द स्क्रीन. अभी हमको एंट्री मिला है. एंट्री मिलने के बाद तुरंत इट विल स्टार्ट टू गो अपसाइड. तुरंत ये क्या किया, ऊपर की तरफ जा रहा है. कहा जा रहा है? टुवर्ड्स द टारगेट. इट इज मूविंग टुवर्ड्स द टारगेट. इट इज नॉट मेकिंग यू टू वेट. आपको वेट नहीं करवा रहा है. इट इज मूविंग टुवर्ड्स द टारगेट एंड गोइंग एंड हिटिंग द टारगेट स्ट्राइट अवे. स्ट्राइट अवे इन स्ट्राइट लाइन इट इज गोइंग एंड हिटिंग द टारगेट. दिस काइंड ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रेड. ये क्या करेगा, आप ट्रेड लेने के बाद इट इज जस्ट लाइक ए मेट्रो ट्रेन. मेट्रो ट्रेन क्या करेगा, मेट्रो ट्रेन विल कम, यू विल बी बोर्डिंग द ट्रेन एंड इट विल बी मूविंग. इट विल नॉट स्टॉप फॉर 1 hour 2 hour. 1 घंटे आधा घंटे वेट नहीं करेगा. सो इट विल गिव यू द टाइम टू टेक एंट्री. आफ्टर टेकिंग ए एंट्री इज डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स योर टारगेट एंड अचीविंग द टारगेट विदाउट डिलेइंग. And this will give you peaceful trading, peaceful profits. You don't need to worry. You don't need to take tension here. This is called momentum trade. Now, you can ask me a question. आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Sir, you know the direction already. ये ऊपर जाएगा करके आपको पता है. Why don't you buy here? Why don't you buy here? Why don't you buy here? Why you are buying only at the last point? इसका एक रीजन है. The reason is, if you are there, if I tell you the direction, मैं आपको डायरेक्शन बोल दूंगा, ऊपर जाएगा, आप इधर ही बाई कर देगा. आप लोग. Why I am not buying? क्योंकि people who are trading here are retailers. Order flow will tell me who is there in the market. So here retailers are present in the market. So I don't trade with the retailer. रिटेलर के साथ में ट्रेड नहीं करूंगा. वो क्या करेगा, मार्केट को उधर ही घुमाते रहेगा. एंड दैट विल मेक मी फ्रस्ट्रेटेड. मुझे फ्रस्ट्रेशन करके मैं गलत करूंगा उधर. व्हाई आई एम टेकिंग ट्रेड हियर, मैं इधर ट्रेड क्यों ले रहा हूं. दिस इज द लोकेशन वेयर इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड टू बाय. Institutions started to buy. I am able to locate this by using order flow and I started to buy with the institutions. Institutions के साथ में buy कर दिया and institutions started to buy repeatedly, buy and because of that repeated buying, market has spiked up. Did you understand the logic? Jitendra Kumar, fantastic. Yes. Did you understand the logic? That's all. इधर कोई बड़ा एनालिसिस नहीं करते हम. वी ऑलवेज फॉलो द इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशन मार्केट में आएगा, उसको फाइंड आउट करके उसके साथ ट्रेड लेना. दैट्स ऑल. नाउ हाउ टू टेक सच काइंड ऑफ ट्रेड्स. दिस इज कॉल्ड, ये ट्रेड क्या है ना, इस ट्रेड में हम 400% हायर क्वांटिटी से ट्रेड लिया था. 400% हायर क्वांटिटी. समझो 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं. वी हैव ट्रेडेड विद द 40 लॉट्स. वी कॉल दिस एज ए हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड. हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड में क्या होता है, ऑर्डर फ्लो इटसेल्फ टेल अस दिस ए वेरी स्ट्रांग मूव इज गोइंग टू हैपन. ये बहुत बड़ा स्ट्रांग में मूवमेंट करेगा, इधर ज्यादा पैसे डाल सकते हैं. दैट इज द हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड एंड वी ट्रेडेड विद द 400% हायर क्वांटिटी एंड वी गॉट ए गुड प्रॉफिट्स. इन द सेम डे में और एक अपॉर्चुनिटी बना, अनदर अपॉर्चुनिटी. And another opportunity, I just show you the option. आप देख लेना फ्यूचर का. इधर फ्यूचर में 20 पॉइंट्स का रिस्क है और ऑप्शन में बाइंग एट 942 एंड स्टॉप लॉस इज एट 932. वी हैव ओनली 10 पॉइंट्स ऑफ रिस्क. 30 इज द लॉट साइज, 300 rupees is the risk. Reward is a 1250 is the target. So overall reward is of 60 points. Sorry, 310 points is the reward. 310 points का रिवार्ड है into 30 will give you 9,300 rupees profits. So again we are risking only 300 rupees and waiting for a target of 9,300 rupees. Okay, ये कैसा चलेगा देखो. This is a high quality trade.
ये हाई क्वालिटी ट्रेड है, एंट्री अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, अब देख लेना एंट्री अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, एंट्री का ट्रिगर नो, अभी एंट्री ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होते ही वंस योर ट्रेड गॉट एग्जीक्यूटेड, आपका बाई एग्जीक्यूट हो गए ऑप्शन का, इट स्टार्टेड टू मूव अप बाय 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स का ऊपर चले गए, immediately you are in 100 points and you see green in your M2M. Now tell me, आपको डर लगेगा क्या? पहला कब आप ट्रेड लेगा उधर ही घूमते रहेगा, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग ए डाउट, क्या ये चलेगा नहीं चलेगा। तुरंत आप ट्रेड लेने के पहले, ट्रेड लेने के बाद यू विल बी इन द प्रॉफिट ऑफ 100 पॉइंट्स क्विकली, डेफिनेटली यू कैन सिट विद द मोर कॉन्फिडेंस। हाँ, अभी हम प्रॉफिट में आ गए and it start to move towards upside and hitting the target straight away. This is how the trades will be generated using order flow. Do you want to trade like this? Do you want to trade like this? ऐसा आप ट्रेड करना है क्या? कितना लोग? How many of you are very serious about this kind of trades? So this is what we are going to focus here. हमारा फोकस होता है ऐसा ट्रेड के ऊपर। दैट इज द रीजन ऑर्डर फ्लो ट्रेडर्स आर हाईली एक्यूरेट एंड दे जनरेट बिगर प्रॉफिट्स देन रेगुलर मेथड्स। वी विल बी हैविंग ए ग्रेटर कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ क्विकली एंड आई विल कम बैक। My name is Balakrishna GN. I am intraday and scalping expert. I have been in this market more than 27 years.